So see articles 1 to 4. Articles 1 to 4 in part 1 of the Constitution, they talk about India, its union and its territories. So you may note it down. I'll just dictate as well here. So articles 1 to 4 under part 1 of the Constitution, it deals with union and its territory. So India's union of states and its territory. So what is article 1? Article 1, it talks about that India, that is Bharat, is a union of states. So we are a union of states. Okay? So it is not a result of, our union is not a result of an agreement between the states, like in the United States. So we will study how our union is an indestructible union. Okay? So this provision that we are talking about here, this provision, it has two meanings here. First is, it talks about the name of the country, that is India or Bharat. It talks about India's name. It talks about the name. Okay. First, it talks about the name. Secondly, it talks about the type of polity. What is the type of polity that we have? So our polity, our setup, our federal scheme is not a result of agreement between the states, and the states have no right to secede. So when we integrated our country into, from 563 princely states and the British Indian provinces into the current existing union, so that once the states became a part, they do not have a right to secede. They don't have a right to go away from the Indian Union. इंडियन यूनियन से अलग होने का उनके पास राइट नहीं है. तो ये एक हमें हमारा एक यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे ओवरऑल सेटअप को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को स्ट्रेंथन करता है, जो इंडिया को ब्रेकअप करने से बचाता है कि डिफरेंट एरियाज में, कभी नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, या कुछ अलग एरियाज में सेसेशन की बात कभी होती है कि इंडिया से अलग हो जा रहा है. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, ये उस चीज को प्रोटेक्ट करती है. कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है कि आप इंडिया से ससीड हो जाएं. ठीक है. सो हियर वी अंडरस्टैंड दैट वी आर अ indestructible union of destructible states. इसका क्या मतलब है? The union as such, the union means the territory of India, the union of India, that is indestructible. We cannot destroy the structure of India. It is sacrosanct. It is sacrosanct means it will exist. It is like perennial. Whereas the states, हमने देखा है कि डिफरेंट स्टेट्स अपनी अपनी जगह टूटती हैं, अलग अलग स्टेट्स बनती हैं, तो वो स्टेट्स डिस्ट्रक्टिव है. फॉर एग्जांपल, हमने जम्मू कश्मीर का रीसेंट एग्जांपल लिया. जम्मू कश्मीर वाज मेड इनटू 2 union territories. Andhra Pradesh, which used to be a big Telugu state, has been divided in 2007-8 into 2 states, Telangana and Andhra Pradesh. UP has been divided into Uttarakhand and Uttar Pradesh. Similarly, Chhattisgarh and Jharkhand came out of MP and Bihar. So similarly, this is what this points to, is that states are destructible. We can alter the boundaries of states, but the overall territorial integrity of India is maintained. इसका मतलब क्या है? The territorial integrity of India is guaranteed, but the territorial integrity of states is not. ठीक है. तो ये आर्टिकल 1 है जो it talks about the territory of India. अब इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या आता है? पहला तो आएगा टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स की टेरिटरी. उसके बाद यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. ये यूनियन टेरिटरीज की टेरिटरी भी इंडिया की टेरिटरी में आता है. और तीसरा, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड लेटर. तो ये हम कब की बात कर रहे हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला था. तो 1954 में, ठीक है, जब पौंडीचेरी ऐड हुआ, 1954 में पौंडीचेरी वाज एडेड. ठीक है. उसके बाद अलग अलग स्टेट्स, जैसे हमने दमन एंड दीव भी 1962 में पोर्टुगीज से लिया. तो इस तरह से इंडिया की टेरिटरी एक्वायर हुई. जो एक्वायर टेरिटरीज थी वो भी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बन गए, और जो यूनियन टेरिटरीज वाले रूल थे वही इन एक्वायर टेरिटरीज पे भी अप्लाई हुए. ठीक है. नाउ कमिंग टू आर्टिकल 2. व्हाट इज आर्टिकल 2? इट गिव्स 2 पावर्स टू द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट. कौन कौन सी पावर्स हैं? पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स. So it gives the parliament the power to admit new states into the Union of India, and secondly the power to establish new states. ठीक है. इसमें क्या है कि एडमिशन एंड एस्टैब्लिश ऑफ न्यू स्टेट नॉट ऑलरेडी पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन. जैसे हमने देखा कि पौंडीचेरी इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं था जब इंडिपेंडेंट हुआ. ठीक है. दमन एंड दीव नहीं था, तो वो हमने बाद में इंडियन यूनियन में ऐड किया. तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस. ठीक है. फिर आपका आ गया आर्टिकल 3. आर्टिकल 3 क्या कहता है?
इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन, जो हमने अभी देखा कि उत्तर प्रदेश से रीऑर्गेनाइज करके 2 स्टेट्स बना दी, आंध्र प्रदेश से अलग 2 स्टेट्स बना दी, तो ये इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का हमने रिसेंट एग्जांपल लिया, जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन कर दी, उसको 2 अलग यूटीज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आर्टिकल 3 की इंप्लीकेशंस क्या है, व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ आर्टिकल 3? पहला, आप किसी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हो, ठीक है। दूसरा, घटा सकते हो। तीसरा, ऑल्टर कर सकते हो उसका नेम, उसकी बाउंड्री, ठीक है। पहले मद्रास स्टेट कहा जाता था, फिर मद्रास से उसका नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया, ठीक है। सिमिलरली, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय ऑल्टरिंग द टेरिटरीज ऑफ 2 or more states। फॉर एग्जाम्पल, 2 स्टेट्स का एरिया, जैसे अब ग्रेटर नागालैंड की बात होती है नॉर्थ ईस्ट में, तो ग्रेटर नागालैंड क्या कहते हैं, कुछ एरिया असम का, कुछ अरुणाचल का, कुछ मणिपुर का, सब मिला के एक हमें ग्रेटर नागालैंड चाहिए, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरी ऑफ 2 or 2, 3 more states टू मेक अ न्यू स्टेट, सो दैट पावर कम्स फ्रॉम आर्टिकल 3, ठीक है। अब आर्टिकल 3 में 2 इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस हैं वो यहाँ समझिए। पहला, द बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड in the parliament only with the prior recommendation of the president। तो जो आर्टिकल 3 में जो ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, नाम चेंज करना, ये सब, ये आपको कैसे होगा? सिर्फ प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के साथ ही आप ऐसा कोई बिल पार्लियामेंट में ला सकते हैं, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ। दूसरा, ऐसा बिल आपको रेफर करना है स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। सो सच अ बिल विच ट्राइज टू alter the boundary or name of a state, diminish or increase its area, or reorganize 2 or more states to make a new state, in that case you have to refer that bill to the state legislature। लेकिन पार्लियामेंट उस डिसीजन से बाउंड नहीं होगा। स्टेट लेजिस्लेचर जो भी चीज डिसाइड करता है, पार्लियामेंट विल नॉट बी बाउंड बाय द डिसीजन, इट इज ओनली एन ऑब्लिगेटरी प्रोविजन, इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो प्रेसिडेंट को करनी है, जो पार्लियामेंट को करनी है, ताकि वो अपना वो काम कर सके ठीक है, ठीक है। इसलिए हमने देखा कि द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया ऑफ अ स्टेट इज नॉट गारंटीड। हमने पहले डिस्कस किया कि किसी भी स्टेट की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी गारंटीड नहीं है। स्टेट को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, 2 स्टेटों से एक स्टेट बनाई जा सकती है, एक स्टेट को तोड़ के 2 स्टेटें बनाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर के केस में देखा, एक स्टेट से 2 यूटी बना दी। तो दिस इंश्योर्स दैट the territorial integrity of states is not guaranteed। दूसरी तरफ, इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। तो पढ़ ही लिया, स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यूनियन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आर्टिकल 2 और 3 के अंडर जो लॉज बनेंगे, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। दैट इज व्हाट आर्टिकल 4 सेज। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या होता है? हमारा एक आर्टिकल होता है 368, आर्टिकल 368, वो प्रोवाइड करता है सर्टेन प्रोविजंस जिसके थ्रू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। उसमें कुछ स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, उसमें फिर जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट चाहिए होता है। जो सिंपल मेजॉरिटी से चीजें पास हो जाती है ना, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहते हैं। इसी तरह जो आर्टिकल 2 और 3 में जो भी लॉज बनते हैं, दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड, दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने बैरोबर यूनियन केस पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर से देखते हैं। बैरोबर यूनियन केस, बैरोबर एक टेरिटरी थी कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सो द इंडियन टेरिटरी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया इस केस में? इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन कंट्री ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। बैरोबर यूनियन केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि हम जो इंडिया की टेरिटरी है, हमने किसी और कंट्री को सीड करनी है, तो दैट कैन हैपन ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। फिर उसी तरह 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई 1960 में, ठीक है। उसमें क्या बोला कि जो बैरोबरी यूनियन है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए पाकिस्तान, ठीक है, वेस्ट बंगाल। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज ऑब्जर्व की 1969 में ही, कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, जैसे इंडिया और बांग्लादेश के केस में बाउंड्री डिस्प्यूट्स हुए, बाउंड्री जो एनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ, तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो उस केस में एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही रिजॉल्व हो जाएगा मसला,
आपको अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं चाहिए। तो ये डिफरेंस समझ लीजिए। अगर हमने टेरिटरी सीड करनी है तो वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट इफ वी जस्ट आर रिजॉल्विंग अ बाउंड्री डिस्प्यूट दैट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। ये जो एनक्लेव्स वाला मसला था बांग्लादेश के साथ। अब प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन कैसे हुई थी थोड़ा सा आपको पता भी है, मैंने काफी बार एक्सप्लेन भी किया है, पर फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो इंडियन यूनियन में 552 स्टेट्स थी, टोटल 563 थी, उनमें से जो इंडियन यूनियन में 552 थी, लोकेटेड इन ऑल ज्वाइंट एक्सेप्ट कौन सी 3 स्टेट्स, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। इनका डिटेल अगर आपको देखना है तो 3 वीडियोस हैं, वो डिटेल में समझाया है, अभी मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या आया, जो लिंग्विस्टिक डिबेट, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट कैसे किया जाए, व्हाट शुड बी द बेसिस। तो इसमें कुछ कमीशंस बैठाए गए। पहला कमीशन जो इस सिलसिले में आया उसका नाम था लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन और धर कमीशन, इसको धर कमीशन भी कहा गया। ये कब आया, जून 1948 में। तो इन जून 1948 वी हैड दिस लिंग्विस्टिक provinces commission headed by S.K. Dhar, also known as Dhar Commission. So what इसने क्या बोला कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो इसने बोला कमीशन ने कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे होनी चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर में। तो इसने लिंग्विस्टिक फैक्टर को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट कमीशन आई, जेवीपी कमीशन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टा भाई सीतारमैया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारमैया, 3 बंदे हैं, इन्होंने कमीशन बैठाई। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की अप्रैल 1949 में। ठीक है, तो पहली कमीशन ने क्या किया, जो एसके धर वाली कमीशन थी, सर लिंग्विस्टिक बेसिस के बेस। उसने लिंग्विस्टिक बेसिस को रिजेक्ट कर दिया, है ना। उसने रिजेक्ट किया लिंग्विस्टिक बेसिस को, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे बोला कि आप रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट करें। और ये जो जेवीपी कमीशन है, नेहरू, पटेल और पट्टा भाई सीतारमैया, इसने फॉर्मली लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन को इसने भी रिजेक्ट कर दिया। सो पहली दोनों कमीशन जो बैठी हैं आपकी, इसने लैंग्वेज को रिजेक्ट किया एज अ मीडियम और अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर क्या हुआ, डिमांड आई तेलुगु स्पीकिंग आंध्र प्रदेश में कि एक हमें अलग स्टेट चाहिए। तब क्या था, तब मद्रास स्टेट का ही पार्ट हुआ करता था पूरा, मद्रास में आंध्र प्रदेश पूरा उसी में आता था। ठीक है, फिर एक स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक पे चले गए, एक बंदा था उसका नाम था पोट्टी सिरामल्लू, पोट्टी सिरामल्लू। तो उसकी प्रोटेस्ट के बाद फिर सरकार को झुकना पड़ा, और सॉरी इवेंचुअली आंध्र प्रदेश हमारे देश की पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनी 1953 में। सो आंध्र प्रदेश became the first linguistic state in the Indian Union in 1953, अक्टूबर 1953। तो ये याद रखो आप, पहली लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, फिर इसके बाद फिर सरकार ने इस प्रोविजन को स्टडी करने के लिए एक कमीशन फिर से बिठाया, जिसका नाम था फजल अली कमीशन। ठीक है, फजल अली कमीशन, ये 3 मेंबर कमीशन था। ठीक है, 3 मेंबर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसके मेंबर्स कौन थे, ये नाम याद रखें, फजल अली, के एम पनिकर एंड एच एन कुंजरू, ये 3 बंदे थे इस कमीशन के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, बट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट। इन्होंने क्या कहा कि आप लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर लें, यू कैन एक्सेप्ट लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, बट यू कैन you have to deny, you cannot accept the idea of one language. It rejected the idea of one language one state, but overall it accepted language as a source of reorganization.
ठीक है, तो ये आंसर क्लियर है आपको? Sir, यहाँ तक क्लियर है? sit out. हाँ जी बोलो। This statement that it can accept on the basis of language, but not one language, one state. This means that in one state there had to be multiple languages. One language could not be there. That is what it meant, right? हाँ, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अब हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, जैसे तो वहां पे पहले ये मद्रास का पार्ट था, आंध्र प्रदेश वाज अ पार्ट ऑफ मद्रास, है ना? तो आंध्र प्रदेश जब मद्रास का पार्ट था, वहां पे तमिल स्पीकिंग लोग भी थे, तेलुगु स्पीकिंग लोग भी थे। तो जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे, उनको लग रहा था कि हमारे जो इंटरेस्ट है वो हर्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने एक लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई। अब उसमें क्या है, उन्होंने ये, अब तेलुगु रीजन में तमिल स्पीकिंग लोग भी होंगे, वहाँ एडजॉइनिंग कर्नाटका स्टेट है, कन्नड़ स्पीकिंग लोग भी होंगे, ऊपर से हिंदी स्पीकिंग लोग भी होंगे, ऊपर जो ओडिशा जो उड़िया स्पीकिंग लोग भी होंगे ना, ऊपर उड़ीसा है आंध्र प्रदेश को टच करता हुआ, इफ यू अंडरस्टैंड द मैप ऑफ इंडिया लिटिल बिट। तो उन्होंने ये कहा कि हम, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक ही लैंग्वेज को हमने मतलब डोमिनेट कर जाए एक स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल, आप पंजाब में अगर पंजाबी ज्यादा लोग बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाकी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को इग्नोर किया जाए। तो इसका आइडिया ये था कि आप लोगों की एस्पिरेशंस हैं कि हमारी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के हिसाब से हमें एक स्टेट बनाने का अवसर मिले, पर ऐसा नहीं हो कि उसी लैंग्वेज के लोगों को सारे राइट्स मिले, दूसरी लैंग्वेजेस को वाले लोगों को इग्नोर ना किया जाए। दैट वाज द आइडिया। गॉट इट? Yes, I got it. या, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ हमारा जो है ना यूनियन का। अभी नेक्स्ट हमारा, हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, हमारे पास वक्त, अब डेट डेट पता नहीं कब आती है इस एग्जाम की। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर मिड फरवरी में हो जाए, तो वी शुड बी एबल टू कंप्लीट आवर सिलेबस बाय द एंड ऑफ जनवरी। तो उसके लिए विल हैव टू थोड़ा सा स्पेस पकड़ना पड़ेगा, आप लोगों को भी एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, ठीक है? तो जहां पे भी आपको लगेगा कि हम थोड़ा तेज अगर जा रहे हैं, तो आप डाउट्स पूछ लेना, बिकॉज वी हैव टू ensure that we complete the major aspects of the syllabus also, ठीक है? नहीं तो अगर मैं पॉलिटी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो 1-1.5 महीना पॉलिटी को ही लगेगा, है ना? इफ यू वांट दैट आई कैन डू दैट एज वेल, बट दैट वोंट बी एडवाइजेबल फॉर द एग्जाम, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल बताया मुझे? 12 से 35, हाँ 12 to 35, ठीक है? आर्टिकल 12 to 35, कौन सा पार्ट? 3। पार्ट 3। तो ये नोट भी करते जाएं आप लोग ना, थोड़ा सा आपके नोट्स बन जाएंगे, रिवीजन हो जाएगी एंड में जल्दी, ठीक है? मैं ये पीडीएफ भी, अगर आप जो मैं नोट कर रहा हूँ ये आप चाहते हैं तो ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन आप अपने नोट्स भी बनाएं, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? अभी हम, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारी कौन सी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है? हमारे पॉलिटिकल राइट्स इसमें हमें मिलते हैं। और जो आपका बीपीएसपी हैं, वो आपके सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है? तो हम अभी राइट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहले आ जाओ, राइट टू इक्वालिटी। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल बोलिए। 14 14 to से 18। 18, हाँ 14 से 18, ठीक है? आर यू गाइस नोटिंग डाउन एज वेल ना? यस Yes, सर। sir. हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो आर्टिकल 14 क्या है आपका? ये आर्टिकल्स अभी रटने हैं आपने, ठीक है? आर्टिकल 14 बताओ जिसको पता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ हाँ लॉस। हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ लिख लीजिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज।
ठीक है, व्हाट इज आर्टिकल 15? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे ग्राउंड्स याद रखने हैं, कौन से ग्राउंड्स है बताइए? रिलीजन, race, caste, sex, place of birth. हाँ, ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स। इसमें एक प्रोविजन आता है, ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स, ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है, और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा कोई और ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि की जा सकती है, बट प्रोटेक्शन हमें इन्हीं ग्राउंड्स पे मिली हुई है। ठीक है, दीज आर द ग्राउंड्स वेयर वी हैव गॉटन दी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है? आप लोगों ने पॉलिटिक पढ़ रखी है थोड़ी बहुत पहले? गाइस, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है ना पॉलिटी का? आवाज कट रही है आप लोग की ना। अच्छा, आर्टिकल 16 क्या है ये? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। क्यों पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, कोई बताएगा? Why are we talking about the equality only in respect of public employment? हाँ जी गाइस, am I audible? सुन पा रहे हैं आप लोग? I think I'm not audible. Yes, sir. As it equal opportunity, it aims to eliminate the discrimination on that ground, I think so, sir. There will be, That is, that is fine, yes, but sir. what I'm asking is Mhm. why only with respect to public employment? What do we mean by that? Mhm. Anyone can tell me? Okay, so by public employment we mean कि जो गवर्नमेंट एडेड एंटरप्राइजेस हैं, फॉर एग्जांपल इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, we cannot guarantee this right, we can encourage there। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे डिफरेंस था। आर्टिकल 17 क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ untouchability and its practice in all its forms। untouchability की एबोलिशन। ठीक है, किसी भी तरह से आपने इसमें देखा होगा कि SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी है, तो वो इसी का एक क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है, इसी फंडामेंटल राइट की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आर्टिकल 18 क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्या मतलब है इसका? ठीक है, जो टाइटल्स थे पहले टाइम पे हुआ करते थे, राय बहादुर, जो हिज मतलब जो राजा राजा को मिलते थे, है ना, जमींदार वगैरह अपने नाम के पीछे टाइटल्स दिखाते थे, उन टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, और अभी सिर्फ आप मिलिट्री और एजुकेशन टाइटल्स ही, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एजुकेशनल टाइटल्स, इन्हीं टाइटल्स को आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे पद्मश्री, पद्म भारत है, सॉरी, पद्मश्री और भारत रत्न है ना, तो उनको आप टाइटल्स की तरह यूज नहीं कर सकते, दो दे आर कॉन्फर्ड बाय द स्टेट, बट यू कैन नॉट यूज देम एज टाइटल्स टू प्रीफिक्स और सुफिक्स योर नेम। ठीक है, और एक और चीज आपको यहाँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में
कि फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके, दे आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो यू कैन मूव कोर्ट फॉर इट्स एनफोर्समेंट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आर्टिकल 19 to 22। यह इसमें क्या आता है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 बताएं, थोड़ा एक्टिव हो जाए क्लास में ना, आई वांट लिटिल बिट ऑफ एनर्जी, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। आर्टिकल 19। Freedom of speech and expression. और सिक्स फ्रीडम्स है ना? Speech स्पीच, and expression, assembly, association, movement, residence, and प्रोफेशन। profession. गुड, एटलीस्ट मेक सम इन्वॉल्वमेंट इन द क्लास। मूवमेंट, एसोसिएशन, ठीक है, प्रोफेशन, रेजिडेंस। स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक साथ ही है, 2, 3, 4, 5, 6। तो यू हैव 6 फ्रीडम्स इन अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया आर्टिकल 20। व्हाट इज आर्टिकल 20? Protection प्रोटेक्शन, यस यस in respect of conviction. यस, कन्विक्शन से प्रोटेक्शन है आपकी। ठीक है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ये आपका आर्टिकल 20 है, इसमें सर्टेन प्रोटेक्शन है, वो आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट आपका आ गया आर्टिकल 21। ये क्या है? Right to life. यस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बहुत ही वाइड आर्टिकल है, इसमें बहुत कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, इसमें राइट टू लिव में राइट टू डाई विद डिग्निटी होता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी में राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी इसमें आ जाता है, राइट टू प्राइवेसी आ जाएगा इसमें आपका। राइट टू प्राइवेसी की जजमेंट कौन सी आई थी रिसेंट, बताएं जरा। Puttaswamy judgment. के एस पुट्टास्वामी जजमेंट, ये आई थी 2017 में। ठीक है, 9 जज बेंच था, 9 जज बेंच। इट upheld the you know constitutional validity of right to privacy, और right to privacy को it placed right to privacy at the pinnacle of the human rights regime। ठीक है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी इज वेरी वेरी वन ऑफ द इंटेग्रल। डेटा प्राइवेसी के बारे में आजकल तो राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। अभी आपने पोस्ट ऑफिस बिल देखा होगा रिसेंटली, उसमें ऑफिसर्स को पावर दे दी गई कि वो खोल सकते हैं और एनवलप्स को, तो ये एक थोड़ी सी इंट्रूजन है राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया आर्टिकल 21 अल्फा। व्हाट इज दिस? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें कौन सी एज ग्रुप में होता है? 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। अब एक छोटा सा यहाँ पे चीज याद रखो कि जो फंडामेंटल राइट्स में एजुकेशन की बात की जाती है वो 6 से 14 साल के बीच। डीपीएसपीज में आपका आर्टिकल 45 है, उसमें 0 to 6 ईयर्स। और फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें भी वो प्रोवाइड करता है, बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आई थी, उसने बोला 6 से 14 साल। तो ये याद रखो कि फंडामेंटल राइट्स में 6 से 14 साल, डीपीएसपीज में 0 to 6, और फंडामेंटल राइट्स में 6 से 14। तो ये डिफरेंस याद रखना है ना कि किस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 22। ये क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन।
ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। नेक्स्ट बताए आर्टिकल 23 क्या है? Prohibition of human trafficking. यस, एंड चाइल्ड लेबर। Prohibition of human traffic and child labor. Okay. Then Article 24. Prohibition of employment of children in factories. ठीक है, इसमें एक फोर्स्ड लेबर भी ऐड कर लो, फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज, तो 14 साल से जो कम वाले बच्चे हैं ना, 14 years और लेस, यू कैन नॉट एम्प्लॉय देम इन हजार्डस एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये एक क्लॉज है, बाकी डिटेल में वी विल कैच अप टॉक अबाउट दिस। नेक्स्ट आ जाए आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 से 28 क्या है? अब ये जो आर्टिकल 23, 24 था, कई बार ये पूछता है कि ये जो चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो क्लॉज हैं वो किस में आते हैं? हम ये बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी में नहीं, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो यूपीएससी में ये डायरेक्ट सवाल भी पूछा गया है कि ये जो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक एंड चाइल्ड लेबर, इट कम्स अंडर विच कैटेगरी? सो इट कम्स अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन भी याद रखें। पहला था राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, then 20 to 24 right against exploitation, then 25 to 28 this right to freedom of religion. Right to freedom of religion, इसमें आर्टिकल 25 क्या है आपका? आर्टिकल 25 है आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ योर रिलीजन। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कौन सा वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म है? हमने कल पढ़ा था। इंडिया में कौन सा टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म है? हाँ जी, कल की क्लास में पढ़ा हमने सेक्युलरिज्म के बारे में। Positive, क्या मतलब होता है उसका? that state can manage evil practices of the religious affairs. That is not the correct definition. Anyone else? क्लास रिवाइज नहीं करते हो क्या घर जाके? हाँ जी गाइस, व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेक्युलरिज्म? बताइए। Sir, apart from being neutral in terms of the matters of religion, state also promotes atmosphere of religious tolerance, I think so, sir. नो, क्लास में थे आप कल? नहीं सर। आपने कल क्लास नहीं अटेंड की? आपने कल थी, आप थे शायद कल क्लास में। यस सर था। हाँ। तो वही तो पूछ रहा हूँ, फिर क्लास में थे तो फिर याद क्यों नहीं है? बाकी किसी को याद है हमने क्या पढ़ा था? पॉजिटिव और नेगेटिव वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म क्या होता है?
थोड़ा क्लास को अटेंटिव ध्यान देके सुने थोड़ा सा। सेक्युलरिज्म देखो क्या होता है। एक तो आपका हो गया पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म। दिस वन इज अडॉप्टेड इन वेस्ट, particularly यूरोप। इसमें आइडिया हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट का, अच्छा रिपब्लिक मैंने बताया था, रिपब्लिक क्या होता है वो बताएं जरा। व्हाट इज अ रिपब्लिक? विच कंट्री डू वी, व्हाट इज अ रिपब्लिक पॉलिटी? ये तो बेसिक पता होना चाहिए। हाँ जी बताएं गाइस। The head of the state is elected, not a hereditary monarch. या दैट इज द इम्पोर्टेंट क्रक्स यू हैव टू नो। अब सेक्युलरिज्म में भी आपको समझाया था मैंने ध्यान से। वेस्टर्न और यूरोपियन मॉडल में क्या है, रिलीजन और चर्च इट इज सेपरेट फ्रॉम स्टेट, नो इंटरफेरेंस। इसमें क्या है, इक्वल इंटरफेरेंस। ठीक है, इसमें पूरा प्रिंसिपल डिस्टेंस है। इसमें इसमें क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस इज यूज्ड। ये दूर रहता है रिलीजियस अफेयर से, इंटरफेयर ही नहीं करना। इसमें करना है लेकिन इक्वल इंटरफेरेंस करना है, इंटरफेरेंस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। मैंने कल ये कॉन्सेप्ट बताया था, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स विच ऑल्सो मीन्स इक्वल डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा करो, जो कोर कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ आ रहा तो डाउट उसी वक्त पूछ लो। ठीक है, तो आर्टिकल 27, क्या आर्टिकल 27? फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस। लिखो, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ योर रिलीजन। कि आपको अगर रिलीजन अपना प्रमोट करना है, कोई टैक्स नहीं देना उसके लिए। ओके, नेक्स्ट आपका आर्टिकल 28, ये क्या है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो जनरली स्टेट फंडेड होंगी ना, उनमें आपको कंपल नहीं कर सकता कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैरी करने के लिए, मतलब फॉलो करने के लिए, इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपके हो गए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन यू हैव आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये क्या है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। इसका जो सब हेडिंग है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, इसमें क्या है, आर्टिकल 29 क्या है, क्या आर्टिकल 29? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, प्रोटेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ अ माइनॉरिटी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो एग्जाम में, पहले भी पूछा जा चुका है काफी बार, कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करता है। तो कौन कौन सी माइनॉरिटी को करता है, एक तो होगी आपकी रिलीजियस, दूसरी होगी आपकी लिंग्विस्टिक। ठीक है, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल 30। क्या है वो, राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
जो पहला वाला था आर्टिकल 29, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी अवेलेबल होता है, मेजॉरिटी ऑल्सो, बट दिस वन इज ओनली टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? 32. आर्टिकल 32, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके बिना हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एज गुड एज नथिंग है। तो इसमें एक आर्टिकल 32 होता है, फिर हमारा आर्टिकल 226 है जो हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं इसमें हम, और 226 के तहत हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम जुडिशरी में जा सकते हैं टू कंटेस्ट दैट। और इसमें 5 रिट्स हैं, इसमें हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, quo warranto, ठीक है, सर्श्योरी, देन यू हैव प्रोहिबिशन, एंड देन वी हैव मैंडेमस। ठीक है, ये 5 रिट्स हैं, बस नाम लिख लो इनके, बाकी इनके बारे में पढ़ते हैं बाद में। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिटीजन्स को भी मिलते हैं और कुछ कुछ राइट्स हमें फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। वो कौन कौन से राइट हैं? राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, ओनली टू सिटीजन्स। कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल। ठीक है, बाकी आपके फॉरेनर सबको टू बोथ, आपके 20 से 28 सारे आर्टिकल्स ये एक्सटेंड टू। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ऑल क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. वंडरफुल। नेक्स्ट आप आ जाइए, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट, आपको मैं लिखवा देता हूँ। पहला लिखिए, द राइट ऑफ मूवमेंट, द राइट ऑफ मूवमेंट ऑफ prostitutes, the right of movement of prostitutes can be restricted, on grounds of public health and morality. We cannot claim a blanket right to move. ठीक है, दूसरा जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है उसमें राइट टू स्ट्राइक इज नॉट इंक्लूडेड। राइट टू स्ट्राइक, इट कैन बी कंट्रोल्ड, ये पॉइंट लिखिए, राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ लॉ। मतलब ये ब्लैंकेट आपके पास पावर नहीं है स्ट्राइक करने की। ठीक है, अब राइट टू इक्वालिटी है ना, आर्टिकल 14, उसके कुछ थोड़े से वहां पे मतलब उसमें केवियट्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो लिख लो। एक्सेप्शंस विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 14, एक्सेप्शंस। नंबर 1, गवर्नर, गवर्नर he enjoys certain immunities, governor enjoys certain immunities under article 361,
इसमें एरो डाल के लिख लो। एक तो हो गया नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग ऑफिस टर्म ऑफ ऑफिस। No process for arrest can be initiated. No process for arrest can be initiated. Then president and governor are not answerable in any court. Are not answerable in any court for the performance of their duties. तो काम किया ना उसके लिए उनको कोर्ट किसी कोर्ट में जवाब नहीं देना है। सेम अप्लाइज टू प्रेसिडेंट ऑल्सो, ये दोनों के कॉमन प्रोविजन है। नेक्स्ट आ जाओ, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स इन दोनों के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती विदाउट गिविंग 2 months नोटिस। सिविल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड विदाउट 2 months नोटिस। ठीक है। आर्टिकल 105 और 194, 105 पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ये स्टेट लेजिस्लेटर से रिलेटेड है। ये प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एज वेल एज एमएलएस की प्रिविलेजेस होती हैं। ठीक है। तो दे शैल नो प्रोसीडिंग्स shall be initiated, no proceedings shall be initiated against a member of parliament, no proceedings shall be initiated against a member of parliament or state legislature for anything said or done inside the parliament। ठीक है, वहां पे उनको इम्यूनिटी मिली है, कुछ भी बोलने के लिए उनको परसिक्यूट नहीं किया जा सकता। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आर्टिकल 31C, इसमें लिख लो, आर्टिकल 31C provides that the laws made for implementing article 39B and C under DPSPs। ठीक है। article 31C provides that laws made for implementing article 39B and C or DPSPs cannot be challenged in the court for the violation of article 14, that is right to equality। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद कर लो पूरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे सर आर्टिकल 31C वाला? हाँ हाँ। सो आर्टिकल 31C is an exception, आप लिख लो, आर्टिकल 31C is an exception and it provides that laws made for the implementation of article 39B and C under DPSPs cannot be challenged in a court for the violation of, on the ground of violation of article 14। ठीक है। ये लॉ आर्टिकल कहता है कि इस आर्टिकल के अंदर बनाए हुए लॉज कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते ऑन द ग्राउंड कि उन्होंने आर्टिकल 14 वायलेट किया है। इसका मतलब है, एक सुप्रीम कोर्ट की वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट है, वेयर एवर आर्टिकल 31C comes in, आर्टिकल 14 goes out। ठीक है। तो ये याद रखो। ये समझ आया? नहीं तो फिर से समझाता हूं अगर समझ नहीं आया तो, कि जो आर्टिकल 31C क्या कहता है कि 39B और C के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर आप कोई लॉज बनाते हो तो वो अल्ट्रा वायर्स नहीं होंगे, वो
वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं होगी अंडर आर्टिकल 14, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है। जो हमने फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की भी बात की थी, उसमें भी मतलब पब्लिक हेल्थ और मोरालिटी की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका, आर्टिकल 20 के 3 पॉइंट्स हैं, ये याद रखने आप। आर्टिकल 20 क्या था? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। इसके 3 क्लॉजेस हैं। नंबर वन लिखो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका क्या मतलब होता है? नो पर्सन, ये लिख लो आप, नो पर्सन shall be convicted of an offense. No person shall be convicted for an offense for a law, under a law no person shall be convicted for an offense for the violation of a law which is in force at that time. मतलब कोई भी बंदे को किसी भी चीज के लिए आप कन्विक्ट, किसी भी क्राइम के लिए कन्विक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए उसी लॉ के अंडर आप कन्विक्ट कर सकते हो जो लॉ उस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उसने क्राइम पहले किया है 4 साल पहले, और आज कोई लॉ लेके आए हो कि उस क्राइम की आज सजा हो जाती है, उस लॉ, वो आज क्रिमिनलिटी में आ गया, तो आप उसको उस चीज के लिए उसको आप कन्विक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है ये वाला फर्स्ट पार्ट इसका? Yes, sir. ठीक है। ओनली लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम, पहला इसका। जो दूसरा, ज्यादा पनिशमेंट, नो पनिशमेंट ग्रेटर देन द वन दैट इज परमिसिबल बाय लॉ। नो पनिशमेंट ग्रेटर देन वन परमिसिबल बाय लॉ। ठीक है। तो आपको उतनी पनिशमेंट देनी है जितनी बाय लॉ परमिसिबल है, और वो तब देनी है अगर वो लॉ उस वक्त फोर्स में है जब ये क्राइम कमिट हुआ है। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं देना। इसका दूसरा पॉइंट है, नो डबल जॉपर्डी। नो डबल जॉपर्डी। नो पर्सन, इसमें लिख लो, नो पर्सन shall be prosecuted shall be prosecuted or punished for a crime more than once। ठीक है, एक ही क्राइम के लिए उसको 2 बार सजा नहीं देनी। तो नो डबल जॉपर्डी। इसका थर्ड पार्ट है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, कि आप, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि अपने खिलाफ गवाही दे, तो ही हैज अ राइट टू बी साइलेंट। वो चुप रह सकता है, अपने खिलाफ उसको गवाही देना जरूरी नहीं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है। क्लियर है यहां तक? फिर 86th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने एक नया फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस किया, राइट टू एजुकेशन का, जो हम पहले एक बार देख चुके हैं। राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने ये आर्टिकल 21A, 21 अल्फा, ये इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ इसने 2 और आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए थे।
एक 51A भी इंट्रोड्यूस किया था इसमें, ठीक है। डीपीएसपी में पहले से ही था क्लॉज, तो 51A इंट्रोड्यूस किया था आपने, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आपका आ गया आर्टिकल 22। क्या था ये? प्रिवेंटिव डिटेंशन थी ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें क्या क्लॉज होता है? ठीक है, 3 महीने से ज्यादा आप किसी बंदे को मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रख सकते। कैनॉट एक्सीड 3 months, ठीक है। और उससे ज्यादा रखना है, एक एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन चाहिए आपको। If you want to detain a person for more than 3 months, you need the recommendation of the advisory board, which consists of the judges of the High Court. ठीक है, इसमें कौन होते हैं? जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो उनकी रिकमेंडेशन के बिना, ठीक है। तो इसमें 2-3 उसको जो नॉर्मल जो क्रिमिनल्स को जो राइट्स हैं कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि उसको किस क्राइम में आपने किया है वो भी बताना पड़ेगा, 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये सब चीजें अलो होती हैं। बट ये एनिमी एलियंस को ये वाले राइट्स नहीं होते कि आपको जैसे उनको बताएंगे हमने क्यों अरेस्ट किया है। लेकिन जब हमने कल पढ़ा था करंट अफेयर्स में, एनएसए लगता है, जब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता है, तो वहां पे ना तो ग्राउंड बताने की जरूरत है, ना तो तुम्हारा ये 3 महीने का जो क्लॉज है कुछ वैलिड नहीं होता उसमें। इंडेफिनेटली, विदाउट एनी एडवाइजरी बोर्ड, विदाउट एनी मैजिस्ट्रियल प्रेजेंटेशन, आप उसको इंडेफिनेटली यू कैन टेक इट फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 22 का हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, ये आर्टिकल 23 है ना अपना, जो जिसमें ट्रैफिक इन ह्यूमंस। तो एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे समझो पहले, जो फंडामेंटल राइट्स है, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं? अगेंस्ट whom can we claim our fundamental rights? Can you tell me? I want you to tell me, because that will help you get some clarity, because I'll ask another question after that. The state. Yes, so they are available against the state most of the times. फंडामेंटल राइट्स स्टेट की आर्बिट्री पावर को कम करती हैं। बस आर्टिकल 23 है ना, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, ये क्या करता है? इट इज अवेलेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। क्योंकि ट्रैफिकिंग में यू सी प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व, सो दैट इज द थिंग हियर। तो ये चीज थोड़ा डिफरेंस आपको ये समझ लेना। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? Yes. हमने पहले क्या देखा था आर्टिकल 29 और 30 के केस में, मैंने पहले ये पॉइंट आपको बता दिया। आर्टिकल 29 किसको अवेलेबल होता है और आर्टिकल 30 किसको अवेलेबल होता है? आर्टिकल 29 किसको अवेलेबल होता है बताएं? Minorities. No, sorry. Yeah, 30 for the minorities. Okay. 29 for minorities and majorities both. और माइनॉरिटीज कौन कौन सी रिकॉग्नाइज की है कॉन्स्टिट्यूशन ने? Religious and linguistic. Yes, so that is the thing here. Both religious and linguistic minorities have been recognized by the constitution, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल जो फंडामेंटल राइट्स के कुछ प्रोविजंस थे
अब फंडामेंटल राइट्स का जो बुलवाक है, जो हमारा जो मेन है, जिसको हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो है आपका आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसमें कुछ रिट्स होती हैं, रिट्स जो हम कोर्ट में फाइल करके अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहली रिट है आपकी हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, इसका लिटरल मतलब होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ। टू हैव अ बॉडी ऑफ, इसका लिख लो, इट इज एन ऑर्डर, इट इज एन ऑर्डर issued by a court. It is an order issued by a court to a person. It is an order issued by a court to a person who has detained the body of another. It is an order issued by the court to a person who has detained the body of another person to produce him. ठीक है, it is available against both public authorities and private individuals, and it is the bulwark of individual liberty. ठीक है, इट इज द बुलवाक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, समझ लो हेबियस कॉर्पस क्या कहता है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने, या किसी, फॉर एग्जांपल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने किसी को इलीगली डिटेन करके रखा है, नॉट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, या फिर किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, तो दिस रिट causes to be laid before the court such a request that to produce a body of the person that has been illegally detained। ठीक है, नेक्स्ट आपकी रिट है मैंडमस। इसका क्या मतलब है, लिटरल वी कमांड। तो इसमें लिख लीजिए, इट इज इशूड बाय अ कोर्ट, इट इज इशूड बाय अ कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल, it is issued by a court to a public official who has failed to perform his duties। ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल को इशू की जाती है जिसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से फेल हो गया और उसको बोला है कि अपना काम करें आप, पब्लिक ऑफिशियल को इशू की जाती है। ठीक है, तो किस किस के खिलाफ हो जाएगी ये, पब्लिक बॉडी। पहले केस में हमने देखा कि पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यहाँ पे पब्लिक बॉडी, ठीक है, कॉरपोरेशन, ठीक है, इंफीरियर कोर्ट, जो मतलब हायर कोर्ट, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट है तो उसके लिए लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए हाई कोर्ट। ठीक है, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, ठीक है, और गवर्नमेंट। तो इनको इशू की जा सकती है बाय, कौन इशू करेगा, कोर्ट इशू करेगा। ऑब्वियसली हम कोर्ट से ही रिट सीक करते हैं तो कोर्ट इशू करेगा। ठीक है, तो ये एक दिस दिस रिट डायरेक्ट एक्टिविटी, मतलब ये कुछ काम करने के लिए बोलता है कि आप काम नहीं कर रहे हो, वो काम आप करो, जो आपको मैंडेटेड आपका काम है वो आप नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज डू दैट वर्क। तो इट डायरेक्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट रिट आपकी प्रोहिबिशन। इसका मतलब क्या है, टू फॉरबिड। तो हमने पहली रिट देखी वो डायरेक्ट एक्टिविटी करती है, तो ये वाली डायरेक्ट इनएक्टिविटी। ये कोई काम जो कर रहा है बंदा उस या ऑर्गेनाइजेशन उसको रोकती है। तो क्यों रोकती है, तो इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट, इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल। हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और
ट्राइब्यूनल, ठीक है। क्यों? फॉर एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन, कि भाई तुमने अपनी ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा काम कर रहे हो, मतलब ये तुम्हारे पावर्स के अंडर नहीं आता है, तो तुम इसको स्टॉप हेयर, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम फ्रॉम एक्सीडिंग द ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। दिस वन डायरेक्ट इनएक्टिविटी, रोकता है काम करने से, जो आप काम आपके अधिकारों के अंडर नहीं आता है, तो उसके लिए। तो इशू किस किस को होता है, ये लिख लीजिए। जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को राइट नहीं है इसका, ठीक है। कैनॉट बी इशू अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये लिख लो किस किस को नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यहां तक लिख लिया? लिख लिया यहां तक गाइस? शैल वी मूव? Yes, sir. मतलब स्पीड तो लिख पा रहे हो ना, स्पीड तेज तो नहीं है? No, sir. ठीक ठीक। नेक्स्ट आपकी रिट आ गई सर्चरी, सर्चरी, इसका क्या मतलब है? टू बी सर्टिफाइड। तो ये क्या है? और टू बी इन्फॉर्म्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, तो ये आपने ये रिट्स याद करनी है। मैं पूछूंगा अभी क्लास में, ठीक है। इट इज इशूड बाय, इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, it is issued by a higher court to a lower court or tribunal, और ट्राइब्यूनल, ठीक है। हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को, टू ईदर ट्रांसफर अ केस, either transfer a case pending with itself, transfers a case pending with it, or quashes its order for the same। मतलब जो एक तो या बोलेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट को, या हाई कोर्ट ने बोला किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या सेशन कोर्ट को, कि आपके पास जो केस है वो ट्रांसफर करो मेरे को, हाई कोर्ट को, या जो उसने लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया होगा विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर, उस ऑर्डर को वो क्वैश कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों में से एक चीज होती है। तो इसका इंपॉर्टेंट एक चीज क्या है कि ये वाली रिट आपकी प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। इट इज प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। ये किसके किसके खिलाफ इशू की जा सकती है? बताइए। ओनली अगेंस्ट judicial and quasi-judicial bodies like tribunals and lower courts। बट 1991 में क्या हुआ, थोड़ा चेंज किया गया, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है, ठीक है। बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये याद रखो। तो फ्रॉम हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ठीक है, या तो ट्रांसफर कर दो केस मेरे पास, या उसका ऑर्डर क्वैश कर दिया। किसके अगेंस्ट होता है? जुडिशियल, क्वालिफिकेशन बॉडीज और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज सिंस 1991। ये 1991 को ऐड हुआ क्लॉज। और लेजिस्लेटिव और प्राइवेट बॉडीज के खिलाफ ये नहीं किया जा सकता। लास्ट आप पे रिट है द रिट ऑफ क्वो वारंटो। इसका क्या मतलब है? बाय व्हाट वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट, बाय व्हाट वारंट, ठीक है। ये क्या कहता है? इट इज इशूड बाय अ कोर्ट, ठीक है, इशूड बाय अ कोर्ट
to inquire into the legality of a claim, legality of the claim of a person or a public office to a public office. एक बंदे ने एक पब्लिक ऑफिस, मतलब पब्लिक ऑफिस पे ही इज वर्किंग एंड इट विल काइंड ऑफ, so it prevents illegal acquisition of a public office. illegally किसी ने पब्लिक ऑफिस पे कब्जा किया है या थ्रू अंडरहैंड मींस, तो वो ऐसा कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Sir, ठीक है. हाँ जी sir, बोलो. in respect to this particular quo warranto, sir, its role is preventing individuals from wrongfully public holding offenses, right, sir? And sir, how does this particular writ contribute to upholding principle like good governance and kind of accountability also? It is self explanatory, no? फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पब्लिक पोस्ट पे हो लेकिन यू आर नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू, तो आपको वहां से हटाना पड़ेगा ना. तो गुड गवर्नेंस का ही हिस्सा है कि कोई गलत बंदा गलत पोस्ट पे बैठा है, गलत तरीके से बैठा है, तो उसको हटाना भी पड़ेगा ना वहां से. जी सर. हाँ. दैट इज द थिंग. सो इट काइंड ऑफ, इसमें जो ये वाली रिट है quo warranto, ये मतलब सिर्फ इंटरेस्टेड पर्सन ही, मतलब कोई भी कर सकता है इसमें. एनीवन कैन डू दैट. ठीक है. जी सर. जी सर. ठीक है. आई थिंक विल क्लोज हियर. आप थोड़ा रिवाइज करके आए, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. थोड़ा सा जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो रिवाइज जरूर करें. सैटरडे को वी आर मोस्ट लाइकली हैविंग अ टेस्ट करंट अफेयर्स का, तो वो भी आप तैयारी रखें. ठीक है. आप मार्च तक ही देखें, आपको पीडीएफ आज शाम को या कल मिल जाएगी मार्च की. ठीक है. मोस्ट प्रॉब्ली कल ही मिलेगी, तो आप तब तक बाकी रिवाइज कर लें, जनवरी एंड फरवरी. तो हो सका तो हम जैन और फेब का ही टेस्ट लेंगे. अगर आप मार्च आपका रिवाइज नहीं हुआ तो मार्च को हम नेक्स्ट शिफ्ट में करेंगे. ठीक है. और थोड़ा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अपने लेवल पे करें, थोड़ा आंसर्स लिखें अपने लेवल पे, फिर उसको हम इम्प्रूव करेंगे. ठीक है. सो वी शुड कॉल इट अ डे नाउ. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो एट 11. बाय बाय गाइस. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir. Jain, sir. Okay.